Okay. So a typical spinal nerve, this is dorsal rami, ventral, dorsal root, ventral root. Together to unite to form spinal nerve, which divides into dorsal rami and ventral rami. Ventral rami are also called as anterior primary rami. The ventral rami further divide into dorsal divisions and ventral divisions. So ये क्या है? रूट. फिर क्या फॉर्म हो गया? स्पाइनल नर्व. फिर ये क्या है? वेंट्रल rami and dorsal rami. This dorsal rami, they never form plexus. They supply the extensors of the back. Ventral rami, they form plexus. They form plexus. You are with me till now? Ventral rami further divide into dorsal divisions and ventral divisions. Dorsal divisions always supply extensor muscles. They always supply extensor muscles and abductors. Extensors and abductors. While ventral divisions, they supply flexor muscles and adductors. This is just most of the time. थोड़ा सा exceptions रहेगा इसमें. I'll come again to this concept of how a typical spinal nerve behaves. Dorsal root, ventral root unite to form spinal nerve. Dorsal root is sensory and ventral root is motor. Together they unite to form the spinal nerve, which further divide into ventral rami and dorsal rami. Dorsal rami, what happens? Never form plexus, supply the ventral rami goes ahead and forms dorsal divisions and ventral. Dorsal division always supply, and ventral divisions always supply flexors. Dorsal divisions always supply flexors. So now when we talk about the brachial plexus, we will be starting our journey from here. We will be talking about ventral rami of C5, C6, C7, C8 and T. ओके, इसके पहले का हम कुछ देख ही नहीं रहे अभी, बिकॉज हमने क्या बोला? वेंट्रल रेमाई दे फॉर्म प्लेक्सिस. यू आर विथ मी ऑन दिस? So we are going to talk about brachial plexus today, and we are going to start our journey from ventral rami, which are going to divide into so root rami divisions. This should be clear. So now I am talking about C5, C6, C7, C8 and T1. Okay? अभी आइडियली वी एक्सपेक्ट कि ये इज्जत से जाके सारे अपने मसल को सप्लाई करे, लेकिन वो प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं. क्यों फॉर्म करते हैं प्लेक्सिस? ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को परेशान कर सके. ओके, नाउ आई एम अगेन गोइंग टू यूज द वर्ड रूट, बट दिस रूट इज नॉट सेम एज वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल. राजस्थान से कौन है इधर? राजस्थान कोई है? राजस्थान. मारवाड़ी कौन है? आपका रूट्स रहेगा ना राजस्थान. आरटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? आरटीडीसी, राजस्थान टूर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. एमटीडीसी क्या है? महाराष्ट्र टूर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. आरटीडीसी फॉर यू
now is roots, trunks, divisions, cords. These are the four parts of the brachial plexus. Roots, trunks, divisions and cords. C5, C6. So these are the roots. C7 का root, C7 का, C8 का root, T1 का root. ये C5 का root, C6 का root. So the roots of the brachial plexus are formed by ventral rami or anterior primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1. So root of the brachial plexus is formed by the rami. अभी rami ideally, ventral rami ideally divides into, लेकिन इधर गड़बड़ होता है. इधर ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सडनली प्रेम हो जाता है इनको. C5, C6, C8, T1. अरे बाप रे, सडन रिलेशनशिप and they form upper trunk, lower trunk. और कोई भी कॉलेज में जाओ कुछ सिंगल लोग होते ही. तो यहाँ पे सिंगल कौन है? C7. वो इधर वहाँ चलो, इधर एक कपल है, इधर एक कपल है, जाने दो अभी क्या करना. So this is upper trunk, this is middle trunk and this is lower trunk. So, you are with me? Upper trunk is formed by union of C5, C6. Lower trunk is formed by union of C8, T1. And middle trunk is formed by C7. फिर उनको याद आता है, अरे नहीं 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 नहीं, अरे अपन तो वेंट्रल रैमा है, अपने को तो डिवाइड करना चाहिए. फिर they divide. Every one of them, they divide into anterior and posterior divisions. Anterior and posterior divisions. अभी मैं ना कन्वीनियंस के लिए लोअर ट्रंक में इसको पोस्टीरियर लिख रहा हूँ और इसको एंटीरियर लिख रहा हूँ ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेट ना हो जाए. खाली लोअर ट्रंक में एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर. क्यों आपको मैं बाद में बताता हूँ. तो ये क्या है अभी? RT D divisions. RTD divisions. Now these divisions, anterior division of upper trunk, anterior division of middle trunk unite to form lateral cord. Unite to form lateral cord. हॉस्टेल ना लेट येणार तेच असतं. श्रद्धा वगैरे नवी मुंबईवरनं टाइम वरती येणार. So lateral cord. Anterior division of lower trunk continues as medial cord. अभी क्या बचा? सबका पोस्टीरियर डिवीजन बचा. समझ रहे हैं आप जो लेट आए अभी अपना क्या सिखा रहा हूं यहाँ पे. So that is why you have to understand the importance of coming in time, beta. Okay? So posterior divisions, सबका posterior divisions, they unite to form posterior cord. Posterior cord. So posterior cord
Posterior cord will continue as radial nerve. Radial nerve जो यहाँ पे रह गया इस पीछे के बाजू, posterior cord. So it will supply what muscles? Posterior cord. Anybody? Extensors. Because वो कैसे form कैसे हुए? By union of dorsal divisions. Dorsal divisions always supply extensors and abductors. Okay? So this radial nerve will supply extensor muscle. So ये सारे जो हमारे पीछे के मसल है, ये extensor का, ये flexion है, ये flexion है, बरोबर? ये flexion है. So it will be supplied by a different nerve. ये extension है. So all these muscles are supplied by radial nerve, which is formed by union of what divisions? Posterior divisions. The lateral cord literally continues down as median nerve. Lateral cord, median nerve लिया मैं देते, median nerve. Median, MEDI, mode median जो था ना वो median nerve. This median nerve supplies these muscles. हमारे forearm के flexors. Forearm के flexors. Okay? Medial cord continues down as ulnar nerve. Continues down as ulnar nerve. Ulnar nerve supplies these muscles over here. Okay? The muscles of the major muscles of the hand are supplied by ulnar nerve. So दो बोन्स है यहाँ पे, रेडियस एंड अल्नार. तो उस हिसाब से दो नर्व्स आपको तो याद रहेंगे, रेडियल, अल्नार. ये मीडियन खाली एक आपको एडिशनल होता है. मैंने सारा नर्व सप्लाई बताया, लेकिन इधर का नहीं बताया, बाइसेप्स का. The biceps will be supplied by a nerve which is arising from the lateral cord, and the name of that nerve is musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve. आप अभी इतना टेंशन मत लो, ये आपको वापस भी सिखाया जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सिस पे. मैं भी वापस सिखाऊंगा musculocutaneous nerve. And then here is, ये lateral cord है ना, lateral pectoral nerve. ये किसको सप्लाई करती है? lateral pectoral nerve, pectoralis major. हमने pectoralis major और minor का जब nerve सप्लाई देखा तो हमने बोला था medial and lateral pectoral. ये सबका एक रूट वैल्यू होता है, नर्व्स का रूट वैल्यू. वो रूट वैल्यू कैसे ट्रेस करेंगे देखो. तो हम देख रहे हैं कि लैटरल पेक्टोरल में कौन से रूट से आया है. यहाँ गए. अच्छा, इसमें C5 C6 के फाइबर्स हैं, बरोबर. C5 C6, फिर इसमें यहाँ और क्या है? C7, C5 C6 C7. This is called as the root value. कि ये नर्व कौन से स्पाइनल सेगमेंट्स के फाइबर्स कैरी कर रही है. ओके, समझ रहे हैं आपको? आपके पीछे कॉर्नर का लड़का क्या लिख रहे हैं आपको? ये हो गया रूट वैल्यू. ये जो लैटरल कॉर्ड का थर्ड ब्रांच है ना, ये यही है.
यही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसको लैटरल रूट ऑफ मीडियन, जिसका भी रूट वैल्यू होगा C5, C6, C7। आप के गांव में किसी के पास वेस्पा नाम की स्कूटर है क्या? स्कूटर किसी ने सुना है? वेस्पा किसी ने सुना है तो हाथ ऊपर करो। सुना है वेस्पा? इंडिया में पहले ये हमारा बजाज और ये काइनेटिक होंडा एक्टिवा आने से पहले गियर वाले स्कूटर्स हुआ करते थे। उसमें से वो जो वेस्पा था, दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड LML वेस्पा। तो LML निमोनिक है, ब्रांचेस of which cord? Lateral cord. So what are the branches of lateral cord? Lateral pectoral, musculocutaneous, lateral rotomedia। ये lateral rotomedia में ऐसे ही नीचे जा रहा है। मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच आती है और वो लैटरल रूट ऑफ मीडियन को यूनाइट होती है। ये लैटरल रूट ऑफ मीडियन लैटरल कॉर्ड से आया है, ये है मीडियल रूट ऑफ मीडियन। मीडियल रूट ऑफ मीडियन, ओके। इसका रूट वैल्यू क्या रहेगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन का? C8 T1। ओके, तो मैं लैटरल कॉर्ड ये शब्द यहाँ पे लिखता हूँ, लैटरल कॉर्ड। तो ये लैटरल रूट ऑफ मीडियन और मीडियल रूट ऑफ मीडियन से अगर मीडियन नर्व तैयार हो जाती है तो मीडियन नर्व का रूट वैल्यू क्या रहेगा? C8 T1 and C5 C6 C7। So root value of the median nerve will be C5 C6 C7, जो उसको लैटरल रूट से मिला, और मीडियन रूट से क्या मिला? C8 and anybody who has not understood this, हाथ ऊपर करो, मैं वापस समझाता हूँ। Which part? Root value part or entire thing should I explain? The root value. देखो, lateral cord के 3 branches हैं, lateral pectoral, musculocutaneous and lateral root of median। तीनों यहाँ से फॉर्म हो गए, तो इनके रूट्स कहाँ से हम देखेंगे? इससे ये lateral cord फॉर्म हो गई, तो C5 C6 से आ रहे फाइबर्स, और ये lateral root cord फॉर्म हो गई anterior division of medial trunk, तो C7 से आ रहे, तो C5 C6 C7 सबका रूट वैल्यू हो रहेगा। आप जब पोस्टीरियर कॉर्ड पढ़ोगे ना, पोस्टीरियर कॉर्ड आल्सो हैज फाइबर्स ऑफ C5 C6 बिकॉज इट इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर डिविजन्स C7 C8 सब करेगा, बट उसमें रूट वैल्यूज विल बी C5 C6 C5 C6 C7 बिकॉज सामने मेनू में कुछ भी रखा हो, कितना खाना है आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मेनू में क्या था? C5 C6 C7, सब ने अपना सब कुछ ले लिया। पोस्टीरियर कॉर्ड में ऐसा नहीं होता है, और जितना जरूरी है उतना ही लेते हैं सब नर्व्स। नाउ कमिंग टू मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड के व्हाट इज द पॉसिबल रूट वैल्यू? C8 एंड वेरी गुड। उसके सारे ब्रांचेस का रूट वैल्यू सेम रहे। तो मीडियन नर्व जो फॉर्म हो गया, it is formed by union of lateral root of median, जिसका रूट वैल्यू is C5 C6 C7, and median root of median जिसका वैल्यू is C8 T1। so median नर्व का रूट वैल्यू is C5 C6 C7 C8 and T1। उसके बाद जो ब्रांचेस है, उसके जो 5 ब्रांचेस है ऑफ द मीडियल कॉर्ड, और उसका न्यूमोनिक है M4U।
M4U. उनके सबके रूट वैल्यूज वही रहेंगे. There will be like medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm. Okay, medial root of medial, फिर ulnar. Okay, and medial pectoral. medial pectoral. इसको सप्लाई करती है medial pectoral. Pectoralis major. So इसका रूट वैल्यू इज C8. Then medial cutaneous nerve of arm. Root value will be C8 T1. Medial cutaneous nerve of forearm. Root value will be C8 T1. I am going to revise this again for you tomorrow. Don't worry. पोस्टीरियर कॉर्ड को मैंने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया. And now I am going to talk about few nerves that take origin directly from the root. Directly from the root. उसमें से एक है dorsal scapular nerve. Dorsal scapular nerve, which is also called as nerve to rhomboids. Nerve to rhomboids. और दूसरा है C5, C6, C7. Nerve to serratus anterior. Nerve to serratus anterior. वो तो हमने कल ही पढ़ा था. So that is also called as nerve of Bell. कोई करेगा बेल नाम का आदमी, उसने अपना नर्व को नाम दे देते हैं और हम लोग बाय हार्ट करते रहते हैं और वाइवा में पूछते रहते हैं व्हाट इज द अदर नेम, व्हाट इज द. तो कैसे याद रखने का? बेल, मंदिर में जो बेल होता है उसके लिए आप क्या करते हैं? हाथ ऐसा ऊपर करते हैं. ओवरहेड एब्डक्शन सेरेटस एंटीरियर का एक एक्शन. तो उसके एक्शंस याद करने का क्या? पुशिंग, पंचिंग, लेडीज कोच में पिंचिंग, फिर ओवरहेड एब्डक्शन, टिंग. तो आपका बेल घंटी इधर बजना चाहिए. नर्व ऑफ बेल. अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस आते हैं, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस. अरे बाप रे, ये भी हमने पढ़ा है. नर्व टू सबक्लेवियस, सबक्लेवियस मसल पढ़ा है. इसका रूट वैल्यू क्या रहेगा? C5, C6. फिर ये सुप्रास्कैपुलर नर्व, इसका वैल्यू क्या रहेगा? रूट वैल्यू C5, C6. ओके. रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या रहेगा? रेडियल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1. बिकॉज वो सबका फाइबर्स ले रहे हैं. अल्नार नर्व का क्या होगा? C8 एंड T1, बिकॉज उधर से यूनाइट हो गए. C8 इधर से आ रहे हैं ना अल्नार नर्व, C8 एंड T1. आज समझा नहीं, याद नहीं रहा, 1 साल है आपके पास. आज शाम को फोन मत करो, नहीं मेरे को लेने को आ जाओ, जम नहीं रहा ये C5, T1 मेरे को नहीं चाहिए. ऐसा सोच के इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, उससे और बदतर मैथमेटिक्स रहता है. ये तो आप ट्रैक कर सकते हैं. तो अल्नार नर्व में ना क्या होता है, C7 थोड़े से फाइबर्स दे देता है अल्नार नर्व को खाली. तो ये M4U में M4, बाकी के जो सब है उसका है C8 T1. अल्नार का जो है C7 C8 T1.
वो C7 अलग से आता है उसको मिलने के लिए, सिंगल है ना बेचारा, क्या करेगा, थोड़ा सा इधर उधर ट्राई मारता है वो भी। C7, C8 और T1। ओके, इस सुमित सर आए, सुमित सर वो आते ही मुझे बोल दे, और 2 मिनट में यू कैन कम, 2 मिनट्स एग्जैक्ट। इंडिया की प्लेबैक सिंगर आपका अटेंडेंस लेती है, सोचो क्या फॉर्चून है। पोस्टीरियर कॉर्ड, इसका न्यूमोनिक इज अल्नार, बरं का, कन्फ्यूज व्हायचं नाही, याचं न्यूमोनिक अल्नार आहे। यातलं आर तर आपण बघितलं काय आहे, रेडियल नर्व, इसके ब्रांचेस का न्यूमोनिक अल्नार है। रेडियल नर्व देखा, ए फॉर एक्सिलरी, एन फॉर नर्व टू लैटिस्मस, लैटिस्मस डॉर्साई, जो जिम में जाते हैं, लैट्स मारा क्या, लैटिस्मस डॉर्साई, ह्यूज मसल, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्लाइंबिंग। और ये है अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, अपर सबस्कैपुलर एंड लोअर सबस्कैपुलर, अपर सबस्कैपुलर एंड लोअर सबस्कैपुलर। रेडियल का रूट वैल्यू क्या है, C5 to T1। अभी ये लोग के सबके पास ऑप्शन था C5 to T1 में से, बट ये वो लोग हैं जो ये मारवाड़ी लोगों के शादी में जाके थोड़ा सा ही खाते हैं। हम लोग तो राह देखते कि कोई गुज्जू मारवाड़ी कब हमको बुलाएगा खाने के लिए, लेकिन ये उधर जाते और एक चपाती सब्जी, उधर इटालियन काउंटर है, मैक्सिकन है, पानी पूरी है, वो सब छोड़ के खा के आते हैं चिंदी लोग। C5, C6, C5, C6, C6, C7, C8, C5, C6, बस इतना से लिख रहे, हमारा पेट भर गया, हम जाते हैं। रेडियल नर्व जस्टिस करता है, मिल रहा है सब काउंटर पे जाता है, C5 पे खाता है, C6 पे खाता है, C7 पे खाता है, C8 पे खाता है, और T1 पे आइसक्रीम खा के घर पे जाता है, सब लेता है रेडियल नर्व। ओके, बट ये ऊपर के लोग डाइटिंग करने वाले सलाद खा के बाहर आते हैं। दिस कंप्लीट्स और ब्रेकिंग प्लेसेस। ओके, स्नेहा मैडम है क्या बाहर देखो। हाँ, नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई, नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई। रईस, स्नेहा मैडम को बोलो, स्नेहा मैडम।